So very good morning to all of you. So students, we last time we have started a chapter that is rational number. Today we are going to learn. Before this we have learned about addition of rational numbers. Now today we are going to learn about subtraction of rational numbers. Okay, subtraction of rational numbers is similar to the addition of rational numbers. The only difference is in the sign. Okay, so now let us start solving some examples based on subtraction of rational numbers. Okay, so our first example is subtract 3 upon 4 from 5 upon 6. Now always remember that in subtraction विचेवर नंबर इज कमिंग आफ्टर फ्रॉम यानी फ्रॉम के बाद में आने वाला जो नंबर है. सो हियर 5/6 इज कमिंग आफ्टर फ्रॉम, तो वी विल राइट दिस नंबर फर्स्ट इन आवर सॉल्यूशन. ओके, सो 5/6 minus 3/4. Okay, again I am telling that the number which is coming after from के बाद में आने वाला नंबर, that we will write first, that is 5/6. Then we have to subtract, so we will write here minus, and then what we have to subtract, 3/4. So afterwards we will write it 3/4. So the same we have written here. Okay, that is 5/6 minus 4. Now for subtraction of these rational numbers we have to make these denominators same, that is we have to find their LCM. For making this denominator same we have to find their LCM. Now one of the method of solving this type of example is doing cross multiplication. Okay, that is 4 will multiply with 5, 6 will multiply with 3, and then they both will multiply with denominator, that is 6 will multiply with 4. So when we are multiplying this 4 with 5, 6 with 3, and this both with each other, okay, we get it in this way. Okay, that is 4 into 5, then here minus sign was present, so we have written here also minus sign, and then 3 into 6, so that we have written here, and after that this 6 and 4 are multiplied with each other, so it is followed over here. Okay, now we have to do the multiplication over here. So now 4 5s are 20, 3 6s are 18, 6 4s are 24. So next step you may get 20, that is 4 5s are 20, so that we have written here. Then 3 6s are 18, so that we have written here. In between minus sign was there, so we have written here minus sign. Then 6 4s are 24, so here it is 24. Now on next step we have to write 20 minus 18, because here they both are having opposite sign, so we will take subtraction. So 20 minus 18, that is 2. Okay, so here we have already written 2 over here, and denominator as it is 24. Okay, now this number again we can write in lowest form, that is they both are divisible by 2, so we can write it as 2 1s are 2 and 2 12s are 24. So 1/12 is our final answer. Okay, so in this way we have to solve subtraction of rational numbers. Remember, only one main step is that we have to decide, again I am telling over here, we have to check that after from whichever number is present, from के बाद वाला नंबर हमको पहले लिखना है, देन बीच में माइनस साइन, उसके बाद में फ्रॉम के पहले वाला जो भी नंबर है दैट वी हैव टू राइट हियर, वो हमको यहाँ पर लिखना है. एंड देन ये मेन स्टेप, और उसके बाद या तो अगर छोटे नंबर से तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, अगर बड़े नंबर है यहाँ पर, इफ़ देर आर सम बिग नंबर्स, then we have to take LCM of these numbers. Okay, so now let us solve next example. Now next example we have subtract -1/2 from -2/3. now as usual from के बाद वाला जो नंबर है वो हम लोग पहले लिखेंगे, एंड फ्रॉम के पहले वाला जो नंबर है वो हम लोग बाद में लिखेंगे. So we will get it in this way. Okay,
-2/3 ये फ्रॉम के बाद में था, तो हमने यहाँ पर उसको पहले लिखा है। देन सब्ट्रैक्शन करना है, इसके लिए माइनस लिखा है। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, -1/2, तो वो हमने लास्ट में लिखा है। नाउ इसके अंदर यहाँ पर सबसे मेन स्टेप ये है कि माइनस साइन के बाद में अगर तुरंत माइनस साइन आती है, यानी दोनों को अगर सेम साइन है, ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि अगर माइनस साइन के बाद में तुरंत माइनस साइन आती है तो सेम साइन है, तो इसकी जगह हम लोग प्लस साइन लिखेंगे। ओके, again I am telling, if minus sign is followed by another minus sign, then we are converting this similar sign into positive sign. ओके, बाद में हमारा रेगुलर प्रोसीजर, हम लोग ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, this 2 will multiply with this 2, this 3 will multiply with this 1, and then this 2 and 3 will multiply with each other. Okay, so now अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको कि साइन के साथ में लिखना है। ओके, जैसे भी यहाँ पर -2 है तो तुमको लिखना है -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दैट वी हैव रिटन हियर -2 मल्टीप्लाइड बाय 2। उसके बाद में देन 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो वी हैव रिटन हियर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर उसके बाद में ये 3 और 2 एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी हैव रिटन हियर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, फिर इसके बाद और रेगुलर प्रोसीजर, नाउ माइनस इंटू प्लस, -2 2s are 4। कुछ साइन कन्वेंशन से इसको हमेशा याद रखना, मैंने लास्ट टाइम भी बताए थे, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। दैट अगर दो नेगेटिव नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग उसको आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। अगर दो पॉजिटिव नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हम लोग साइन क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, हम लोग उसको माइनस लिखेंगे। अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तब भी माइनस लिखेंगे। सिंपल रूल ऐसा है दैट व्हेन सेम साइंस आर मल्टीप्लाइंग ईच अदर वी राइट पॉजिटिव। ओके, एंड व्हेन different signs are multiplying each other we write subtraction. okay, so यही रूल हम लोग फॉलो करने वाले हैं। अब so now 2 2s are 4, 1 3s are 3 and 3 2s are 6 we have written here. Now after this one, now both these numbers are having opposite sign. Remember, ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे उस वक्त साइन चेंज होगी, और जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे उस वक्त हम लोग को डिसाइड करना है कि क्या प्रोसीजर होगी। नाउ दिस टू नंबर्स आर हैविंग अपोजिट साइन। ओके, सो वी विल डू सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। सो 4 minus 3 that is 1. ओके, एंड 4 इज़ ग्रेटर देन 3, तो हम लोग इसकी साइन को प्रेफर करेंगे, सो इट इज़ माइनस। सो आवर फाइनल आंसर इज़ -1/6। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स। नाउ हियर इट इज़ गिवन दैट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। आई हैव कंसिडर्ड हियर एग्जाम्पल नंबर 4, दैट इज़ 5/24 माइनस -17/-36। अब रैशनल नंबर के अंदर हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अबाउट नेगेटिव रैशनल नंबर एंड पॉजिटिव रैशनल नंबर। उसके अंदर हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, मतलब ये दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर न्यूमरेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में प्लस है, तो ये बन जाएगा माइनस। सिमिलरली अगर न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तब भी ये माइनस रहेगा, और न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में भी प्लस है, उस वक्त ये प्लस रहेगा। ओके, सो सिंपल रूल इज़ दैट व्हेन numerator and denominator they both have same sign, we write it as positive number, and when numerator and denominator they have opposite sign, we write it as negative number. Okay, in this example we can see that numerator and denominator both are having
same sign. Okay, so instead of this minus we can directly write it as 5 upon 24, our first number as it is. This minus was given over here. Now instead of this we have written 17 upon 36 q, because both of them are having minus sign, so it can be written as simply 17 upon 36. अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं बोला है, सिंप्लीफाई बोला है, तो किसी की जगह चेंज नहीं होगी, जो जिस जगह पर प्रेजेंट है उसी जगह पर रहेगा. द नंबर वॉज वी कैन नॉट चेंज द पोजिशन ऑफ दिस नंबर्स. ओके, बिकॉज इट इज़ गिवन सिंप्लीफाई. हाँ, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट लिखा होता 5 अपॉन 24 फ्रॉम माइनस 17 अपॉन माइनस 36, उस वक्त हम लोग इसको पहले लिखते, लेकिन अभी नहीं लिखना है. ओके, अब इसके बाद में इसको सॉल्व किस तरह से करना, तो वी हैव लर्न कि अगर हमको इसके आगे इसको सॉल्व करना है तो हमको ये डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. नाउ रिमेंबर कि ये बड़े नंबर है, ये अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा कैलकुलेशन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. सो हम लोग इसके इस वक्त प्रेफर करेंगे कि 36 और 24 का एलसीएम फाइंड करना. एलसीएम तुमने 6 और 7 स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, सो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग उसका एलसीएम लिखेंगे. नाउ एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज़ 72. ओके, LCM of 24 and 36 equals to 72. अब एक बार अपना LCM डिसाइड हो गया कि LCM कितना है 72, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर भी 72 बनाएंगे और इसका डिनोमिनेटर भी 72 बनाएंगे. अब जैसे 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 बनेगा. सो हम लोग इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं सो ये बन जाएगा 72. अब जो नंबर से डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 24 को यहाँ पर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नंबर हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, सेम नंबर से हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो 24 3 जार 72. अब हमको इसका भी डिनोमिनेटर जो है ये 72 बनाने का है. सो 36 को किससे मल्टीप्लाई करेगी तो 72 बनेगा. सो 36 इंटू 2 72. सो जो नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया हमने, वही नंबर हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो हमने यहाँ पर 17 को भी किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया. नाउ आवर रेगुलर प्रोसीजर 5 3 जार, सो वी हैव रिटन हियर 15, बीच में माइनस साइन है तो माइनस लिखा है. 17 2 जार 34, 24 3 जार 72, 36 2 जार 72. अब यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. एक बार डिनोमिनेटर सेम हो जाता है उस वक्त हम लोग न्यूमरेटर को कंटिन्यू लिख सकते हैं. ओके, सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज 15 माइनस 34. याद रखना ये साइन हमको कहाँ से मिली है, यहाँ से. ओके, सो 15 माइनस 34 और दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर था 72, तो अब हम लोग उसको एक ही बार लिख सकते हैं 72. ओके, अब इसके बाद में अगर हम लोग ये न्यूमरेटर को देखेंगे, सो दे बोथ आर हैविंग अपोजिट साइन. ओके, अपोजिट साइन अगर रहा नंबर को तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स. तो अब हम लोग ये 34 में से 15 को माइनस करेंगे. सो 34 माइनस 15 हमको मिलेगा 19 यहाँ पर. ओके, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो 34 ग्रेटर है, इसका साइन है माइनस, तो हमने वो माइनस साइन यहाँ पर लिखा है. सो आवर फाइनल आंसर इज माइनस 19 अपॉन 72. ओके, सो नाउ अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स जो है वो है इवेल्युएशन का. इवेल्युएट द फॉलोइंग मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, अब यहाँ पर भी याद रखना कि हम लोग साइन को कब चेंज कर सकते हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पर अगर माइनस के बाद में तुरंत माइनस साइन आती है तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका आंसर हम लोग हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस. इसको याद रखना सिर्फ. ओके, सो नाउ लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने कंसीडर किया है.
ये वाला. So let us look at that example. Okay, so we have minus 5 upon 36 plus 3 upon 8 minus minus 2 upon 9. अब याद रखना कि यहाँ पर माइनस साइन इज़ फॉलोड बाय अनदर माइनस साइन. तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर चेंजेस करेंगे. ओके, क्या चेंजेस होगा? ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस. ओके, बाकी सारे नंबर्स हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे. सो क्या मिलेगा हमको? यू विल गेट, ये पहला नंबर हमने एज इट इज़ लिखा है यहाँ पर माइनस 5 अपॉन 36, 3 अपॉन 8 एज इट इज़ लिखा है. लेकिन ये जो माइनस माइनस है इसकी जगह क्या बन जाएगा? प्लस 2 अपॉन 9. ओके, अब इसके बाद में हमको कुछ और करना नहीं है. अब हमको इसको न्यूमरेटर्स को अगर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है उसके लिए हमको डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा. और डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए सबसे अच्छी प्रोसीजर है LCM. ओके, यानी हमको ये तीनों का LCM फाइंड करना पड़ेगा. अब LCM 36, 8 और 9 का क्या LCM आता है? तो इनका LCM आता है 72. क्या LCM है इसका? 72. LCM की प्रोसीजर अगर नहीं मालूम है तो उसको एक मरतबा तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना. ओके, सो LCM कितना है? 36, 8 और 9 का अगेन 72. ओके, अब हम क्या करेंगे कि सबका डिनोमिनेटर 72 बनाने की कोशिश करेंगे. जैसे अगर 36 को अगर हमको 72 बनाना है सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय अगेन सेम 2. 8 को अगर 72 बनाना है सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय यस हाउ मच? 9. और 9 को अगर 72 बनाना है सो वी विल मल्टीप्लाइड बाय 8. ओके, सो नाउ इन दिस वे यू विल गेट. अब सेम कंडीशन कि डिनोमिनेटर को जो नंबर से मल्टीप्लाई किया है बाय दैट सेम नंबर वी विल मल्टीप्लाई दी न्यूमरेटर. सो 36 को 72 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से ही हम लोग न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. 8 को 72 बनाने के लिए हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर हमने न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई किया है? 9 से. 9 को 72 बनाने के लिए हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से. ओके, क्यों हम लोग इसको बार बार 72 बना रहे हैं? क्योंकि ये तीनों नंबर का LCM क्या है? 72. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ LCM ऑफ 36, 8 एंड 9 इक्वल्स टू 72. इज इट क्लियर? अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे. नाउ माइनस इंटू प्लस सो इट विल बिकम माइनस. ओके, ये माइनस साइन. देन 5 2 जार तो वो हमको मिल जाएगा 10. 36 2 जार तो 72. फिर इसके बाद में 3 9 जार तो 27. 8 9 जार 72. अगेन 2 8 जार 16. 8 9 जार 72. अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबका डिनोमिनेटर क्या बन चुका है? 72. ओके, तो हमने पढ़ा है दैट वंस वी आर गेटिंग ऑल द डिनोमिनेटर्स सेम यू कैन राइट द न्यूमरेटर्स टुगेदर. ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? हम लोग अब आगे लिखेंगे -10 जो यहाँ से मिला है प्लस 27 सो वी हैव रिटन इट हियर प्लस 16 सो दैट वी हैव रिटन हियर. अब तीनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है तो हमने उसको नीचे लिख दिया है दैट इज़ 72. इज इट क्लियर? अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? तो हमको ये न्यूमरेटर को सॉल्व करना है. बेस्ट मेथड है कि पहले जो ऐड होते हैं उनको ऐड कर लो. सो 27 प्लस 16 मैंने पहले इसको ऐड किया है, इसको एडिशन किया है मैंने. सो 27 प्लस 16 कितना मिलेगा? सो यहाँ पर मुझे मिला है 43. ओके, देन दिस -10 एज इट इज़. अब इट कैन बी सीन दैट कि ये दोनों नंबर्स को अपोजिट साइन है. दोनों नंबर्स को अपोजिट साइन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर. सो 43 - 10 33 आता है. ग्रेटर नंबर 43 है तो उसकी साइन हमने यहाँ पर लिखी है, कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस. ओके, सो 33 upon 72 is our final answer. Okay, hope that you all must have understood up till here. So this much is enough for today. Thank you. Have a nice day.